بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کہانیوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ کسی زمانے کا ذکر ہے۔ ایک ملک میں ایک بادشاہ تھا۔ اس کے 2 بچے تھے، ارشد اور زرینہ۔ بادشاہ اور ملکہ اپنے بچوں سے بڑی محبت کرتے تھے، ان کی ہر خواہش پوری کرتے تھے اور ہر طرح ان کے آرام کا خیال رکھتے تھے، مگر خدا کی مرضی میں کسی کا دخل نہیں ہوتا۔ ارشد ابھی 9 سال کا تھا اور زرینہ صرف 7 سال کی کہ ملکہ کا انتقال ہو گیا۔ بادشاہ کو ملکہ کی موت کا بڑا دکھ ہوا اور وہ اداس رہنے لگا۔ اس طرح وہ 2 سال بیت گئے۔ بادشاہ بدستور اداس رہتا۔ اسے اپنی تنہائی کا بھی احساس تھا اور بچوں کی تربیت کی بھی فکر تھی۔ اس نے سوچا اگر وہ دوسری شادی کر لے تو اس کے بچوں کی تربیت بھی ڈھنگ سے ہو جائے گی اور اس کی اداسی بھی بہت حد تک دور ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے اپنے سب سے بڑے جہاز کے کپتان کو طلب کیا اور اسے حکم دیا کہ جہاز کو سونے، چاندی، جواہرات اور قیمتی کپڑوں اور دوسرے توبوں طوائف سے لاد کر بیرون ملک روانہ ہو جاؤ۔ ملکوں گھومو اور ہمارے لائق اگر کوئی خوبصورت عورت تلاش کرو۔ اگر وہ ہماری ملکہ بننے پر رضامند ہو گئی تو یہ طوائف اس کی خدمت میں پیش کرو اور اسے یہاں لے کر آؤ تاکہ ہم اس سے شادی کر لیں۔ شاہی فرمان سنتے ہی کپتان نے روانگی کی تیاریاں شروع کر دی۔ جہاز پر انتہائی قیمتی، نادر اور نایاب چیزیں لاد دی گئی اور جہاز اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ جہاز بیچ سمندر میں تھا کہ ایک گھٹا امڑ آئی اور تیز آندھیاں چلنے لگی۔ سمندر کی لہریں آسمانوں سے باتیں کرنے لگی اور جہاز ان لہروں میں کاغذ کی ناؤں کی طرح ڈولنے لگا، یہاں تک کہ جہاز کے چپکو ٹوٹ گئے اور وہ ہواؤں کے رحم و کرم پر تھا۔ اب ہوا کا زور کچھ کم ہوا، طوفان ذرا ٹھہرا تو جہاز ایک کنارے پر آ لگا۔ لنگر ڈالے گئے، کپتان اترا۔ وہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ جہاز کس جگہ لنگر انداز ہوا ہے اور یہ کہ یہاں بادشاہ کے لیے کسی ملکہ کی تلاش کے امکانات ہے بھی یا نہیں۔ کپتان دور دور تک چلا گیا مگر آبادی کے نام و نشان تو دور کی بات، دور دور تک کوئی آدمی بھی نظر نہ آیا۔ تھوڑی دور اور چلنے کے بعد اسے ایک چھوٹی سی کٹیا نظر آئی۔ اس نے اس کے دروازے پر دستک دی۔ دستک کی آواز پر ایک بوڑھی عورت نے برآمد ہوئی اور اس نے کہا، میں اندھی ہوں، تمہیں دیکھ نہیں سکتی، بتاؤ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ کپتان نے اسے بتایا کہ سخت طوفان نے ہمیں ادھر ڈھکیل دیا ہے۔ پھر اس بڑھیا کو بتایا کہ وہ اپنے ملک کے بادشاہ کے لیے ایک خوبصورت ملکہ کی تلاش میں نکلا ہے اور یہاں بھی وہ اسی غرض سے آیا ہے۔ اس جزیرے پہ تمہیں ایسی کوئی عورت نہ مل سکے گی۔ اس بڑھیا نے کہا، تو پھر ہم کسی دوسری جگہ چلے جائیں گے۔ میرا جہاز طوفان سے ٹوٹ گیا ہے، میرے آدمی اس کی مرمت کر رہے ہیں۔ کیا میں آج کی رات آپ کی کٹیا میں گزار سکتا ہوں؟ کپتان نے بڑھیا سے درخواست کی۔ میری کٹیا میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ تم رات میں یہاں رہ سکو، مگر طوفان ابھی باقی ہے، ہوائیں تیز چل رہی ہے، اس لیے تمہارے لیے کسی اور جگہ ٹھہرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ خیر آ جاؤ، جیسے تیسے گزارا کر لیں گے۔ اس بڑھیا نے کپتان کو اندر بلایا۔ جیسے ہی کپتان اندر داخل ہوا اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ باہر سے نظر آنے والی یہ جھونپڑی اندر سے ایک عالیشان محل تھی۔ ایک طرف آتش دان میں آگ جل رہی تھی، کمروں میں قیمتی فرنیچر تھا، کھانے کی میز پر سونے چاندی کے برتن لذیذ کھانوں سے بھرے رکھے تھے۔ بڑھیا نے اس سے کہا، اب تم اپنی مدد آپ کرو، میں تمہاری خدمت کرنے سے معذور ہوں، خود نکالو اور جتنا جی چاہے کھا لو۔ کپتان تھکا ہوا تھا، اس نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد کپتان نے بڑھیا سے پوچھا، کیوں اماں ایسے ویرانے میں تم تنہا رہتی ہو؟ تنہا ہی سمجھو بیٹا، میری صرف ایک لڑکی ہے عذرا، بس ہم دونوں ہی یہاں رہتے ہیں۔ بڑھیا نے کہا، تو ذرا عذرا کو یہاں بلاؤ، میں اسے بھی تو دیکھوں۔ بڑھیا نے پہلے تو منع کیا، پھر کسی نہ کسی طرح عذرا کو بلانے پر راضی ہو گئی۔ عذرا آئی تو وہ ایک لمبی چوڑی دبلی پتلی نازک سی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس سے بہتر عورت بادشاہ کے لیے اور کون ہو سکتی ہے؟ یہ انتہائی حسین ہے، کپتان نے دل میں سوچا۔ کپتان نے بڑھیا سے کہا، میں بادشاہ کے نام پر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس لڑکی کو میرے ساتھ جانے دے، اسے ملک کی ملکہ بنایا جائے گا۔ نہیں میاں، ایک غریب عورت کی لڑکی محل میں کیسے رہ سکے گی؟ نہیں، یہ ملکہ بننے کے لائق نہیں ہے۔ بڑھیا انکار کرتی رہی اور کپتان کا اصرار بڑھتا گیا۔ بالآخر بڑھیا اس شرط پر راضی ہو گئی کہ اگر بادشاہ اسے ملکہ بنانے پہ تیار نہ ہو تو یہ کپتان کی ذمہ داری ہوگی کہ اس لڑکی کو اس تک پہنچا دی جائے۔ کپتان فوراً راضی ہو گیا۔ دوسرے دن کپتان عذرا اور بڑھیا کو لے کر ساحل پر آیا۔ رات بھر میں اس کے آدمیوں نے جہاز کی مرمت کر لی تھی۔
तूफान भी गुजर चुका था और वो रवानगी के लिए तैयार हो रहे थे। कप्तान ने अजरा को वो सारे तोहफे तवाइफ दिखाए। बुढ़िया को खुदा हाफिज का और अपने मुल्क की तरफ रवाना हो गया। चलते चलते बुढ़िया ने अजरा से कहा, जाओ बेटी, खुदा हाफिज, मगर देखो मुझे वो बड़ा पत्थर भेजना ना भूलना। चंद दिन बाद कप्तान अपने मुल्क पहुंच गया। साहिल पर बादशाह खुद इसे खुश आमदीद कहने के लिए मौजूद था। इसने अजरा को देखा और कप्तान के इंतखाब की दाद दी। अजरा वाकई बहुत खूबसूरत थी और मलका बनने के लिए हर तरह से मौजूद थी। चुनांचे बादशाह ने धूमधाम से शादी कर ली। मुल्क में जश्न मनाया गया, चिरागा रोशन किए गए और रियाया बहुत खुश थी। अजरा अच्छी मलका साबित हुई थी। वो अरशद और जरीना से बड़ी मोहब्बत करती थी और उन्हें किसी किस्म की तकलीफ नहीं होने देती थी। बादशाह इससे शादी करके हर तरह से मुतमईन था। इस दौरान बादशाह को एक जंगी मुहिम पर जाना पड़ा। इसने जंग की तैयारियां शुरू कर दी। रवानगी से पहले इसने अजरा से कहा, देखो अजरा, मेरी गैर मौजूदगी में भी मेरे बच्चों का इसी तरह ख्याल रखना। मुझे तुम पर बहुत भरोसा है, मगर फिर भी मैं तुम्हें खुसूसी तवज्जो दिला रहा हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज। और बादशाह जंगी जहाज पर चढ़ गया और दुश्मन मुल्क की तरफ बढ़ने लगा। उधर अजरा बच्चों की देखभाल करती रही और इनकी हर ख्वाहिश पूरी करती रही। इनके साथ खेल कूद में लगी रहती, इनकी तालीम और तरबियत का इंतजाम करती और जब कभी तफरीह के लिए निकलती तो उन्हें भी साथ ले जाती। एक रोज जब आसमान साफ था, हवाएं खुशगवार चल रही थी, यह लोग साहिल समुंदर पर तफरीह के लिए गए। बच्चे सीपियां बटोरने लगे। अजरा ने कहा, लाओ मैं इन सीपियों से तुम्हारे लिए 2 खूबसूरत ताज तैयार कर दूं। इसने सीपियों को गूंथ कर ताज तैयार किए और बच्चे के सर पर रख दिए। यह ताज इनके सरों पर बड़े भले लग रहे थे। फिर वो साहिल पर पड़े हुए एक चौकोर पत्थर के पास जा खड़ी हुई और बच्चों को भी इशारे से वहीं बुला लिया। इसने बच्चों से कहा, इस पत्थर पर खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारी तस्वीरें बनाऊंगी। बच्चे पत्थर पर खड़े हो गए। जैसे ही दोनों इस पर खड़े हुए, अजरा ने कहा, खुल जा पत्थर, और पत्थर खुल गया। यह अंदर से खोखला था। ये पत्थर के अंदर घुस गए और पत्थर फिर से बराबर हो गया। शहजादी ने जोर लगाकर पत्थर को समुंदर की मौजों के हवाले कर दिया और खुद रोती धारती महल पहुंची और कहने लगी, बच्चे कहीं गायब हो गए हैं, वो मिल नहीं रहे। बादशाह के गुलाम हर तरफ दौड़े, कोना कोना छान मारा, मगर बच्चों का कहीं पता ना लगा। आखिर सब लोग थक हार कर बैठ गए। यह पत्थर दरअसल जादू का था और अंदर से खोखला था और ऊपर से सख्त था। इसके अंदर बच्चे बंद थे और उन्हें हवा पहुंच रही थी। यह पत्थर पानी में डूब भी नहीं रहा था, बल्कि बर्फ की सिल्ली की तरह पानी के ऊपर तैर रहा था। न जाने कितने अरसे तक यह पानी पर तैरता रहा और फिर एक जगह रुक गया। अरशद ने कहा, मालूम होता पत्थर किसी साइल से आ लगा है। अब हम क्या करें भाई? मेरे ख्याल में तुम वही अल्फाज कहो जो मलका ने कहे थे, शायद पत्थर खुल जाए। खुल जा पत्थर, अरशद ने कहा और पत्थर खुल गया। दोनों बच्चे जल्दी से निकलकर गीली रेत पर आ गए। वो साइल पर खड़े थे और दूर दूर तक किसी बस्ती या किसी जानदार का निशान भी न था। अब हमें अपना घर खुद बनाना होगा, अरशद ने कहा और क़याम के लिए कोई मुनासिब जगह तलाश करने लगा। आखिर इसे किसी कदर बुलंदी पर एक मुनासिब जगह मिल गई। इत्तफाक से अरशद के पास 3 चीजें थी, एक चाकू, एक बांसुरी और एक छोटी सी बंदूक। बस ये 3 चीजें इस वक्त इन बच्चों का सहारा थी। चाकू की मदद से अरशद ने लकड़ी की नोकदार कुदालें बनाई और इनसे रेत खोदकर चारों तरफ अहाता बना लिया। फिर वो इधर उधर गार से खारदार झाड़ियां भी काट लाई। इससे उन्होंने अपने नन्हे घर की दीवारें और छत तैयार कर ली। अब इसने जरीना से कहा, जरीना तुम आग जलाओ, मैं जंगल से कुछ परिंदे मार लाता हूँ, उन्हें भूनकर खाएंगे। अरशद चला गया। थोड़ी देर में वो 2 फाख्तों को मार लाया, मगर यहाँ जरीना हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। इसने कहा, भाई लकड़ियां यहाँ तो है, झाड़ियां भी है, मगर माचिस नहीं है, जलाऊं तो किस चीज से जलाऊं? अच्छा तुम ठहरो, मैं इसका भी कुछ बंदोबस्त करता हूँ, अरशद ने कहा और निकलकर खड़ा हो गया। बाहर निकलकर अरशद ने देखा तो दूर दूर तक आबादी के निशान नहीं थे। वो चलता रहा यहाँ तक कि इसे एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। इसका दरवाजा खुला हुआ था। अंदर से कीमती सामान नजर आया।
सामने ही आतिशदान था और एक बुढ़िया आतिशदान से अंगारे चुन रही थी। एक आध अंगार इसके बर्तन में जाता, बाकी इधर उधर फर्श पर बिखर रही थी। अरशद ने सोचा कि यह बुढ़िया अपनी सूरत से कोई जादूगरनी मालूम होती है, मगर यह अंधी है, वरना अंगारियां इसके फर्श पर ना बिखरते। बहरहाल इसे तो अपनी जरूरियात पूरी करनी थी। वो चुपके से कुटिया में दाखिल हुआ। इससे एक टीन का खाली डब्बा नजर आया। इसे लेकर वो आतिशदान के करीब पहुंचा और फर्श पर बिखरे हुए अंगारे बर्तन में भर ले आए और चुपके से बाहर निकल गया। अपने घर आकर इसने अंगार जरीना के हवाला किया। इसने आग दहकाए और इस पर फाख्ताएं भूनी गई। दोनों ने खूब मजे लेकर खाया। अब अरशद थक चुका था। दिन को शिकार की तलाश में वह बहुत मारा मारा फिरा था। इसे नींद आ रही थी। इसने जरीना से कहा, मुझे नींद आ रही है, मैं तो अब सोता हूँ। सुबह दोनों भाई बहन सोकर उठे तो एक अंगारा भी न था। लकड़ियां जलकर राख हो चुकी थी। इसलिए दूसरे रोज भी अरशद को आग के लिए चोरी करनी पड़ी। मगर दूसरे दिन भी यही हुआ और फिर तो अरशद का मामूल हो गया कि रोज जाकर बुढ़िया के अंगारे चुरा लाता, क्योंकि आग महफूज ना रह पाती सुबह तक। इसी तरह कई दिन गुजर गए। वो कभी साइल से मछली पकड़ लाते तो कभी अरशद परिंदे मार लाता। इस तरह उन्हें खाने पीने की भी कोई तकलीफ ना थी। एक दिन जरीना ने कहा, भाई आज मैं भी तुम्हारे साथ आग लेने चलूंगी। नहीं जरीना, यह तुम्हारे बस की बात नहीं, मुझे बड़ी मुश्किल से चोरी करनी पड़ती है और फिर तुम बुढ़िया की शक्ल और इसकी हरकतें देखकर बर्दाश्त न कर सकोगी और तुम्हें हंसी आ जाएगी। इस तरह हम मारे जाएंगे। नहीं भाई, मैं वादा करती हूँ कि मैं अपनी हंसी पर काबू रखूंगी। जरीना ने वादा किया और अरशद इसे साथ ले जाने पर राजी हो गया। दोनों बहन भाई बुढ़िया के कुटिया में पहुंचे। दरवाजे से अंदर झांक कर देखा। अंदर का मंजर बड़ा अजीब था। बुढ़िया आतिशदान पर फूंक मारती और राख का बादल खुद इसके मुंह पर आ पड़ता। वो अंगारियां उठाती और इधर उधर फर्श पर बिखेर देती। एक आध अंगारा ही इसके बर्तन में आ पाता। इस मंजर को देखकर जरीना अपनी हंसी जब्त न कर सकी और खिलखिलाकर हंस पड़ी। इसकी आवाज सुनते ही बुढ़िया ने कहा, अच्छा आखिर बच्चे यहाँ पहुंच गए हैं, यह तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। और यह कहकर वो तेजी से बच्चों की तरफ लपकी कि वो बेचारे भाग ही ना सके। बुढ़िया बड़ी मजबूत साबित हुई। इसने एक हाथ से दोनों को पकड़ रखा था और इसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। वो अपने आप को छुड़ा ना सके। बुढ़िया ने अपने साइबान की खंभों से चमड़े की तस्मों से दोनों को बांध दिया। रात के वक्त उन्हें दूध में रोटी चूरकर खाने को भी दी, मगर इनके बंद ढीले नहीं किए और अरशद इस तरह के जकरबंद से सख्त तकलीफ महसूस कर रहा था। इसने सोचा, जरीना यह सब कैसे बर्दाश्त करेगी, कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। आखिर कब तक यूं ही कैद में रहेंगे। इसने अपने हाथों की तस्मे को दांतों से काटना शुरू किया और शाम होते होते वह अपने सीधे हाथ को आजाद करा लेने में कामयाब हो गया। और अब इसने पतलून के जेब में हाथ डाला और चाकू निकालकर सारे तस्मे काट डाले। फिर इसने रजिया को भी आजाद कराया और चुपके से जाकर मकान का जायजा लिया। बुढ़िया एक तरफ बेखबर सो रही थी। दोनों बहन भाई चुपके से भाग निकले। बाहर आकर अरशद ने जरीना से कहा, तुम इधर झाड़ी के पास खड़ी होकर मेरा इंतजार करो, मैं जरा एक तरकीब कर लूं। इसने बुढ़िया के ऐन सामने रेत को खोदना शुरू किया। थोड़ी देर में वो एक गहरी सी खंदक खोदने में कामयाब हो गया। उधर जब बुढ़िया की आंख खुली तो इसने बच्चों की आहट ली, मगर कुछ सुना ही नहीं दिया। वो साइबान के खंभों तक आई और टटोल कर देखा तो बच्चे गायब थे। इसे सख्त गुस्सा आया। वो बाहर भागी। रजिया ने जैसे ही बुढ़िया को देखा, खंदक के दूसरे सिरे पर खड़े होकर जोर का कहकहा लगाया, अच्छा तुम यहाँ हो, मैं अभी तुम्हें भागने का मजा चखाती। बुढ़िया तेजी से आवाज की सिमत दौड़ी आई, लेकिन वो अंधी थी, इसे खंदक नजर न आया। वो सर के बल खंदक में गिर गई और इसकी गर्दन की हड्डियां टूट गई। बुढ़िया ने खंदक में ही दम तोड़ दिया। अब अरशद और रजिया की जान में जान आई और वो सीधे अपने घर आए। आज जब उन्होंने आग जलाई तो रात भर जलती रही और सुबह अंगारे मौजूद मिले। शायद बुढ़िया के मौत के साथ इसका तलसन भी टूट गया, मगर बच्चे इस वीराने और तन्हाई से घबरा गए थे। इसकी नजर समुंदर की तरफ लगी रहती थी। शायद कोई जहाज किसी दिन उधर से गुजरे और उन्हें इनके मुल्क तक तन्हा पहुंचा दे। एक दिन दोनों बहन भाई साहिल के किनारे बैठे थे। अरशद बांसुरी बजा रहा था और रजिया सीपियां चुन रही थी कि उन्होंने 3 जहाजों को दूर से गुजरते देखा। अरशद ने बांसुरी जोर जोर से बजाना शुरू की और रजिया ने हाथ हिलाए। जहाज वालों ने इनके इशारे समझ लिए। एक जहाज साहिल की तरफ भरने लगा। यह एक जंगी जहाज और इस जहाज पर बच्चों का बाप बादशाह मौजूद था।
जहाज से एक कश्ती साहिल पर भेजी गई और बच्चे जहाज पर पहुंचा दिए गए। बादशाह ने बच्चों को ताज्जुब से देखा और इनकी वारदात पूछी। बच्चों ने बताया कि किस तरह इनकी मां ने एक जादुई पत्थर में बंद करके यहाँ पहुंचाई और फिर किस तरह वो उस बुढ़िया के चंगुल से आजाद हुए। बुढ़िया को यह दास्तान सुनकर बहुत गुस्सा आया। इसने तय कर लिया कि वो मलका को इसकी सजा जरूर देगा। चंद दिन बाद बादशाह अपने मुल्क पहुंच गया। अजरा ने बच्चों को बादशाह के साथ देखा तो फौरन इसके कदमों में गिर पड़ी। बताया कि वह बुढ़िया दरअसल इसकी मां नहीं बल्कि एक जादूगरनी थी। मेरी मौत के बाद इसने मुझे अपने जादू में कैद कर लिया था। मैं इसके हुक्म की सरताबी नहीं कर सकती थी और इसकी पाबंद थी। उसके हुक्म के तहत मैंने बच्चों को इस तरफ पहुंचा दिया था। वो आपके बच्चों की पुरानी दुश्मन थी, मार डालना चाहती थी। अब खुद बहादुर अरशद ने इसको ठिकाने लगा दिया। इसकी मौत के साथ इसके सारे तलस्सुम भी टूट गए। मैं भी अब इसके हुक्म की पाबंद नहीं रही। मैंने जो कुछ किया इसकी सजा मुझे जरूर दीजिए, मगर मुझे अपने साथ रहने दीजिए और फिर देखिए कि मैं आपसे और आपके बच्चों से कितनी मोहब्बत करती हूँ। नहीं अब्बू, इनको कोई सजा ना दीजिए, यह तो मजबूर थी। मजबूरी में जो कुछ किया जाए इसकी क्या सजा हो सकती है। अरशद और जरीना ने तजवीज पेश की। बादशाह ने इनकी तजवीज को पसंद किया। मलका अजरा को माफ कर दिया। वो बादशाह और इसके बच्चों के साथ बड़ी मोहब्बत से रहती रही। इनकी बाकी जिंदगी बड़ी खुशी और मुसर्रत से गुजरी। मोहतरम नाजरीन, अगर ये आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।